Boys and girls, it's time for us to move on ahead with our next question. The next question is based on dynamics. ठीक है, kinematics of particle का question है ये. The acceleration of a particle in the rectilinear motion. So the particle is given into a rectilinear motion. The acceleration is given by a is equal to 100 minus 3x square. यहाँ पे capital X लिखा हुआ है, but that capital X is actually nothing but what? It's the position of the particle. जो small x है वही है वो. ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. Knowing that at t equal to 0, v is 0, x is equal to 0, find the velocity of the particle at x equal to 8 meters. Now, boys and girls, please understand, ये जो t equal to 0 दिया हुआ है, v equal to 0 दिया है एंड x equal to 0 दिया हुआ है, ये क्या है? ये हमारा इनिशियल कंडीशंस है. ठीक है, इनिशियल कंडीशंस है. तो एक्सेलरेशन का रिलेशन दिया है और वो दिया है इन टर्म्स ऑफ x. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन. So यहाँ पे since the particle is starting from the origin x equal to 0, I can assume that the displacement of the particle and position of the particle are one and the same things. ठीक है, so सबसे पहला मैं acceleration का relation लिख देता हूँ 100 minus 3x स्क्वायर. ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ एक्सेलरेशन से मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे वेलोसिटी फाइंड करना है. द क्वेश्चन इज फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल टू 8 मीटर्स. तो मुझे पता है एक्सेलरेशन को और वेलोसिटी को अगर मुझे रिलेट करना है एक दूसरे के साथ, तो आई हैव टू डिफरेंट रिलेशंस. a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, बट दिस विल बी यूज्ड व्हेन acceleration is given as a function of time. लेकिन यहाँ पे acceleration is given as a function of what? The displacement or the position of the particle. So I have another formula. A is equal to v into dv upon dx. तो इसको हम यूज करने वाले हैं. A is equal to v into dv upon dx. So therefore I can say v into dv by dx is equal to 100 minus 3x square. That gives me v dv is equal to 100 minus 3x square into dx. From mathematics we know ये dx ऐसे जाता नहीं है वहां पे. ठीक है, there are rules, there are steps which happen in the background. तो सिंपलिसिटी पर्पस के लिए हम बोलते हैं कि dx को हमने उस तरफ भेज दिया है. ठीक है, then we take integration on both the sides. ठीक है, इंटीग्रल कर देंगे. अब मुझे पता है इंटीग्रेशन ऑफ x raised to n dx, integration of x raised to n dx is x raised to n plus 1 अपॉन n plus 1. ये फॉर्मूला हमको पता है. इंटीग्रेशन ऑफ x raised to n dx is given by what? x raised to n plus 1 upon n plus 1. तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे. तो सबसे पहला मुझे दिख रहा है v raised to 1. ठीक है, तो v raised to 1 का क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा? इट वुड बी v स्क्वायर अपॉन 2. इट इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में आ जाओ, 100 माइनस 3x स्क्वायर दिया हुआ है. तो फर्स्ट हमें 100 उसका इंटीग्रेशन करेंगे. तो इंटीग्रेशन ऑफ 100 dx ऐसे हो जाएगा. ठीक है, तो ये सारा स्टेप्स लिखने का जरूरत नहीं है वैसे. सो इंटीग्रेशन ऑफ 100 dx, 100 कांस्टेंट बाहर चला गया, 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा. तो आई राइट 100x माइनस 3 कांस्टेंट, अगेन सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन चालू किया मैंने. इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर, सो 3 कांस्टेंट बाहर चला गया, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3. एंड देन सिंस वी आर डूइंग इंटीग्रेशन, लेट्स नॉट फॉरगेट द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो मैंने प्लस सी लिख दिया वहां पे. नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, 3 and 3 will get cancelled, isn't it? Let's make use of the initial conditions which are given to us to find the value of C. So मुझे पता है at x equal to 0, velocity of the particle is also 0. तो इस इक्वेशन में आके v के जगह पे, x के जगह पे हम 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे. So I get 0 square upon 2, 100 into 0 minus 0 का क्यूब प्लस सी. तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो सी का वैल्यू 0 आ गया. दैट मीन्स I have the relation of velocity and the position or the displacement of the particle as what? V square upon 2 is equal to 100x minus x cube, isn't it? V square upon 2 is equal to 100x minus x cube. अब जो भी x के लिए मुझे velocity find करना है, I can substitute that value of x into this equation. Let me call this equation as equation number 1 और मुझे वेलोसिटी का वैल्यू मिल जाएगा. बट बी वेरी केयरफुल, हमको जब x का वैल्यू हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है तो हमको वैल्यू किसका मिलेगा? v का नहीं मिलेगा डायरेक्टली. ठीक है, v स्क्वायर का मिलेगा. फिर हम स्क्वायर रूट लेंगे और फिर v का आंसर निकाल लेंगे. तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? x के जगह पे वैल्यू क्या दिया हुआ है? 8 मीटर्स. उस वक्त
वेलोसिटी कितना है मुझे पता करना है. सो एट x इक्वल टू 8 meters, at x equal to 8 meters, I'm going to get the velocity, but initially I'll get the answer of v square. So v square upon 2 is equal to 100 into x के जगह पे 8 minus 8 उसका क्यूब हो जाएगा. So from here, if I simplify, v square would come. So that's 2 times of 100 into 8 is 800 minus 8 का क्यूब. चलो जल्दी से आंसर निकाल लेता हूं मैं. 100 माइनस और 100 into 8 minus 8 उसका क्यूब. So the answer is coming 288. 2 into 288, which is nothing but 576. तो v स्क्वायर का वैल्यू 576 आ गया. इसका मतलब है v का वैल्यू प्लस माइनस 24 मीटर पर सेकेंड आ सकता है. ठीक है. नाउ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट बॉयज एंड गर्ल्स. ठीक है. वेलोसिटी मुझे पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन अब मुझे पता करना पड़ेगा कि दोनों आंसर सही है या फिर एक ही आंसर सही है. अब ऑब्वियस सा बात है, एक ही जगह पे वेलोसिटी, जो पार्टिकल का वेलोसिटी है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नहीं हो सकता है. हाँ, ये हो सकता है कि उस पॉइंट से जब आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, उस वक्त उसका वेलोसिटी 24 मीटर पर सेकेंड है. फिर आगे जाके कहीं पे उसका वेलोसिटी 0 हो गया, और फिर जब रिटर्न आ रहा है वापस से, तो उस वक्त उसका वेलोसिटी -24 मीटर पर सेकेंड हो गया. दैट इज क्वाइट पॉसिबल. बट एट द सेम प्लेस द पार्टिकल कांट हैव टू डिफरेंट वेलोसिटीज एट द सेम टाइम. ठीक है. एक ही टाइम पे वेलोसिटी दो अलग अलग वैल्यू नहीं हो सकता है. तो मैं पहले पता कर लेता हूं कि जो मेरा वेलोसिटी है वो 0 कब होने वाला है. ठीक है. तो इक्वेशन वन में अगर मैंने इक्वेशन वन में वेलोसिटी का वैल्यू 0 डाल दिया, ठीक है, सो वेलोसिटी का वैल्यू 0 डाल दिया, सो आई एम गोइंग टू पुट v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड इन इक्वेशन नंबर वन. सो आई गेट 0 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 100x माइनस ऑफ एक्स क्यूब. ठीक है. तो x कॉमन निकाल लो. x कॉमन निकाल लिया, क्या बचा? 100 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. दैट गिव्स मी आइदर x इज 0 or you get x square is 100. That means I get either x is 0 or x is equal to plus and minus 10 meters. But since I am assuming that the particle is moving in the right direction, isn't it? So यहाँ पे 10 मीटर तुम्हारा आंसर आ जाएगा. इसका मतलब है the particle will attain velocity as 0 मीटर पर सेकेंड at 10 meters. तो हमको 8 मीटर पे ही पूछा है. इसका मतलब पार्टिकल राइट डायरेक्शन में जा रहा है, और अगर राइट डायरेक्शन में जाने वाला है तो वेलोसिटी पार्टिकल का हो जाएगा +24 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग बॉयज एंड गर्ल्स. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट समटाइम्स दे आर नॉट अवेयर कि यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आएगा या नेगेटिव आंसर आएगा. ब्लाइंडली बहुत से लोग पॉजिटिव आंसर लिख के आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी आंसर नेगेटिव भी होता है, डिपेंडिंग ऑन पार्टिकल का जर्नी कैसा है. अब देखो, यही अगर मैंने 12 सेकेंड के लिए पूछ लिया होता, ठीक है, 12 मीटर्स के लिए पूछ लिया होता, तो शायद आंसर कुछ अलग आता. इजंट इट? आंसर कुछ अलग आता. x इक्वल टू 12 मीटर्स दे दिया तो सम डिफरेंट आंसर माइट हैव कम. इजंट इट? सो यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल ओवर हियर. सो अगर मैंने x के जगह पे 12 डाल दिया, ठीक है, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं. सो 100 इंटू 12 v स्क्वायर में जाके सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं, -12 उसका क्यूब कर दिया, तो आंसर ही मेरा नेगेटिव आ गया. आंसर नेगेटिव आया. v स्क्वायर कांट बी नेगेटिव. दैट मीन्स जो हमारा पार्टिकल है वो 10 मीटर के आगे जा ही नहीं सकता है. 10 मीटर पे जाएगा, उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, फिर उल्टा घूम जाएगा. ठीक है. फिर रिवर्स डायरेक्शन में पार्टिकल जाना चालू कर देगा. तो x इज इक्वल टू +8 मीटर पे, -8 मीटर पे, तो अलग अलग वैल्यूज हमको यहाँ पे मिल सकता है. सो नोट बी वेरी 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 केयरफुल. और हियर 10 मीटर पे क्या हो रहा है? 10 मीटर पे वेलोसिटी 0 हो रहा है, तो 8 मीटर पे वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगा. सो आई हैव टू पिक द पॉजिटिव आंसर. v is going to be 24 meter per second. This is the correct answer for the given question. So boys and girls, I'm pretty confident that this particular question has been understood. It's now time for us to move on ahead with the next question.